Okay, hello and welcome again in this fresh session now again. As you are aware that we are dealing with the essential elements of valid contract, that is to make to convert an agreement into a contract. Certain essential elements are required which are given in section 10 also, and certain essential elements are there which are not in section 10 but still are essential. Okay, the essential elements not in section 10 but still necessary for making valid contract we discussed are: number one, first of all, there must be two parties. Number two, we discussed intention to create legal relationship must be there. Number three, we discussed कि statute prescribe certain legal formalities must be complied. Number four, we discussed that the terms of agreement must be clear, certain, not vague. Number five, essential elements not in section 10, we discussed that your contract must be capable of being performed. It should not be impossible to perform. Okay. Then we started the second half part of the answer, that essential elements which are not given in section 10. Out of that, two we already discussed right now. That is one, offer and acceptance should be there, मतलब agreement चाहिए वहाँ पे. And number two right now we discussed, that was parties की जो consent है वो consent कैसी होनी चाहिए, बोलो फ्री होनी चाहिए. We discussed कि section 13 of Indian contract में दिया है कि parties must have the consent की definition section 13 में दी है. हाँ, कंसेंट मतलब क्या था, एग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस. नोट डाउन करके रखो, कंसेंट ऑब्लिक कंसेंसस एडिडम लैटिन फ्रेज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो वहां पे एग्री अपॉन सेम थिंग. उसी चीज पे दोनों पार्टी जब सेम सेंस में एग्री करते हैं तब हम कहते हैं कि दोनों की कंसेंट है. बट लॉ कहता है कि कंसेंट ओनली इज नॉट इनफ for making a valid contract. More than that, free consent should be there. Okay, and section 14 of Indian Contract Act बताता है कि consent will be said to be free if it is not caused by coercion, मतलब physical force use करना, defined in section 15 of Indian Contract Act. undue influence मतलब moral force use करना, defined in section 16 of the Indian Contract Act. fraud डिफाइन इन सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब इंटेंशनली झूठ बोलना सामने वाले पार्टी की हाँ लेने के लिए. सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन, मतलब झूठ तो है, फॉल्स स्टेटमेंट तो है, बट फॉल्स स्टेटमेंट करने वाले को खुद को पता नहीं है कि वो फॉल्स स्टेटमेंट कर रहा है, उसको लग रहा है कि वो सही बोल रहा है. दैट इज सेक्शन 18 मिसरिप्रेजेंटेशन. हाँ, 19 सेक्शन को बीच में छोड़ना है. एंड देन 20, 21 एंड 22 ऑल आर मिस्टेक. मिस्टेक मतलब एरर ऑफ थॉट, एक पार्टी को एक लग रहा है, दूसरे पार्टी को दूसरा लग रहा है वहां पे, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा क्योंकि वहां पे कंसेंट इज सेड टू बी नॉट फ्री. सो सेक्शन 14 कहता है कि कंसेंट विल बी सेड टू बी नॉट फ्री इफ इट इज कॉज्ड बाय कोर्शन. सेक्शन 15 अंडर इन्फ्लुएंस, सेक्शन 16, 17 फ्रॉड, 18 मिसरिप्रेजेंटेशन एंड 20, 21 एंड 22 क्या जाएगा बोलो वहां पे, mistake. Okay, so next essential element now we are going to discuss for creation of a valid contract required given in a section 10 of Indian Contract Act, that parties must be capable of making the contract. parties की क्या चाहिए बोलो, contract करने की capacity चाहिए. that is next essential element we are going to see right now. see capacity of the parties. बराबर देखो, section actually मॉड्यूल में मेंशन करते हुए they should have taken this point अब पहले और बाद में पहला वाला फ्री कंसेंट वाला पॉइंट देना चाहिए था अगर हम सेक्शंस की बात करें एक्चुअली. हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्शन नंबर आता है ना, यहाँ पे सेक्शन नंबर आता है 11. सेक्शन नंबर 10 याद है आप सबको? सेक्शन नंबर 10 में क्या डिस्कस किया था हमने, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट दी है ना. बराबर सेक्शन नंबर 11 क्या है बोलो, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज है. तो parties must be capable of being making a valid contract. Capacity to contract means ability of the party to enter into a valid contract. Now section 11 of the Indian Contract Act में every person is a competent to contract if he fulfill three conditions. Number one, he must be of the age of majority according to the law to which he is subject. जिस भी लॉ के नीचे वो आता है उस लॉ का जो मेजॉरिटी एज है उस हिसाब से वो मेजर होना चाहिए. नंबर टू, he must be of the sound mind, मतलब वो पागल नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए. वो अंडरस्टैंड करने के लिए कैपेबल होना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो क्या है, एंड उसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कॉन्ट्रैक्ट करने से
नहीं किया होना चाहिए, ओके, एंड इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। हाँ, नाउ सिंपल 3 क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड, ओके। नंबर 1 क्वालिफिकेशन को डिस्कस करते हैं हम लोग, ही मस्ट बी एज ऑफ मेजॉरिटी, राइट। नाउ नंबर 1, हमारे इंडिया में जो मेजॉरिटी एज डिसाइड करने वाला लॉ है वो है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। हमारे इंडिया में जो मेजॉरिटी डिसाइड करने वाला लॉ है उस लॉ का नाम क्या बोलो, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। सो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से इंडिया में one who has completed the 18 year of age is considered as a major, and one who is below 18 is considered as a minor. Simple. So qualification A refers to the age of contracting person, that is the person entering into a contract must be क्या होना चाहिए बोलो 18 year, and person below the age of 18 are considered as a minor and therefore they are incompetent to contract. Very simple. First qualification कहती है कि जिसका एज 18 कंप्लीटेड है वो मेजर है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जिसका एज 18 बिलो है वो माइनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। हाँ, नंबर 2 देखो, he should be of a sound mind. Second qualification, हाँ, what it is saying that see B point देखो, qualification number B require that a person to be sound mind, हाँ, he should be in a senses, उसके senses aware होने चाहिए ताकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना उसका क्या परिणाम होगा वो समझने के लिए वो केपेबल है, वो बहुत मैटर करता है। हाँ, सो दैट ही अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस परिणाम of the contract at the time of entering into contract, so that he is able to understand the effect, he is able to understand the implications of the contract at the time of making of the contract। हाँ, देखो जैसे कि एक पागल, एक लुनाटिक, मतलब जनरली ना आपको वो 2 वर्ड दिख रहा है तो आपको लग रहा होगा कि ये 2 वर्ड अलग अलग क्यों आए, लुनाटिक भी पागल होता है, इडियट भी पागल होता है, बट थोड़ा सा मेडिकल भाषा में बात करें ना तो लुनाटिक मतलब वो पर्सन जिसको पागलपन के झटके आते हैं, मतलब वो कभी कभी नॉर्मल होता है कभी कभी पागल होता है। सो लुनाटिक इज अ पर्सन हु जनरली सफर फ्रॉम इंटरवल्स ऑफ द सैनिटी एंड इनसैनिटी। हाँ, और इडियट पूरा पागल होता है, तो इडियट कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं कर सकता क्योंकि वो पूरा पागल है, उसको हमेशा पागलपन ही सिचुएशन में रहता है, तो उसको कभी भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करता है और क्या नहीं। बट लुनाटिक जब पागल नहीं होता ना, जब उसको पागलपन के झटके नहीं है, जब वो नॉर्मल है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और जब वो पागलपन के झटके में आता है तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो 2 नाम अलग अलग दिए। हाँ, लुनाटिक और इडियट और ड्रंकन पर्सन, आप सबको पता है ड्रंकन पर्सन इज एज इक्वल टू लुनाटिक होता है ना, जिसने ड्रिंक्स ली है, वो जो इंसान है दारू पी के घूम रहा है वो ऑलमोस्ट एज इक्वल टू पागल ही होता है वहां पे। हाँ, दारू ली या कोई भी टॉक्सिकेंट आइटम लिया है लाइक ड्रग्स एक्सेट्रा। हाँ, or under the influence of intoxicant is not supposed to make a person of a sound mind, so he is not able to make a contract, okay। So qualification number B क्या कहती है कि to make a valid contract parties का साउंड माइंड होना जरूरी है। साउंड माइंड मतलब उसके सेंसेस इतने अवेयर होने चाहिए कि उसको समझ में आता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसका इम्पैक्ट क्या होगा। हाँ, लाइक लुनाटिक, इडियट, ड्रंकन पर्सन, इनको वो क्या करते समझ में नहीं आता, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब वो पागल है। हाँ, लुनाटिक जब वो पागलपन के दौरे से गुजर रहा है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन जब उसने ड्रिंक्स या ड्रग्स लिए तब। हाँ, और इडियट हमेशा ही cannot make a valid contract। And last point qualification number C क्या कहती है, याद है, he must not be disqualified from making the contract by law। लॉ ने उसको कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या नहीं किया, डिस्क्वालीफाई नहीं किया। हाँ, नाउ यू मे हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड, ये क्या चीज है, लॉ क्यों किसी को कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाई करेगा? तो there is an answer for this particular doubt in your mind. I'll explain you. Qualification number C requires that a person entering into a contract should not be disqualified by his status in entering into a contract। हाँ, उसको किसी स्टेटस की वजह से लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाई नहीं किया। नाउ क्वेश्चन मार्क, who are that person जिनको लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाई किया। हाँ, जैसे देखो नंबर 1 such a person is a alien enemy। now who is this particular person alien enemy? alien word तो आप सबने सुना है। हाँ, now this is a foreigner who is not a Indian, that is considered as a alien। जो इंडियन नहीं है वो एलियन है वहां पे। हाँ, हमारे लिए तो एलियन फ्रेंड भी हो सकता है और एलियन एनिमी भी हो सकता है। अब नाउ क्वेश्चन मार्क अगेन,
what is this two term, what are these two terms, alien friend, alien enemy. हाँ, suppose we just talk about कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका, हाँ, इनका हेल्दी रिलेशनशिप है, फ्रेंडली रिलेशनशिप है. हाँ, तो जिस देश के साथ हमारा फ्रेंडली रिलेशनशिप है, उस देश का जो सिटीजन होता है वो हमारे लिए क्या बनता है, एलियन फ्रेंड बनता है. हाँ, एक एग्जांपल के लिए ले लो, समझो अभी चल तो नहीं रहा है बट स्टिल चाइना ने जो भी सब कुछ किया, हाँ, अबाउट दिस पर्टिकुलर वायरस एंड एक्सेट्रा. हाँ, तो समझो किसी वजह से चाइना और इंडिया का वॉर शुरू हो गया. किसी वजह से चाइना और इंडिया का क्या शुरू हो गया, वॉर ऑलरेडी शुरू हो गए. तो अब चाइनीज जो होगा, एनी सिटीजन ऑफ द चाइना विल बी एनिमी फॉर अस. हाँ, तो जिस देश के साथ हमारा वॉर चल रहा है, उस देश का जो सिटीजन होता है वो हमारे लिए क्या बनता है, बोलो, एलियन एनिमी बनता है. हाँ, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ एलियन एनिमी इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, हम लोग एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. जब वॉर चल रहा है किसी देश के साथ, तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड वी कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद द सिटीजन ऑफ अ कंट्री विद whom इंडिया इज गोइंग थ्रू द वॉर. देन नेक्स्ट वन, फॉरेन सॉवरेन्स, फॉरेन कंट्री के जो एम्बेसडर्स या उनके जो सॉवरीन्स होते हैं ना, सॉवरीन मतलब उनके हाईएस्ट अथॉरिटीज, राजा और पर्टिकुलर हाईएस्ट अथॉरिटीज, वो लोगों के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता. एक्चुअली ना, उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉरेन सॉवरीन को हम लोग इंडियन कोर्ट में ऐसे ही लेके नहीं आ सकते. और अगर समझो फॉरेन सॉवरीन ने कल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास रेमेडी कुछ बचेगी नहीं ना, क्योंकि फॉरेन सॉवरीन को अगर इंडियन कोर्ट में हाजिर करवाना होगा तो उसके लिए ना या तो उनके गवर्नमेंट की परमिशन लगती है, या फिर वो फॉरेन सॉवरीन खुद को इंडियन कोर्ट में सरेंडर करे. हाँ, तो हमारे पास रेमेडी नहीं बचती अगर, हाँ, फॉरेन सॉवरीन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इट्स बेटर कि फॉरेन सॉवरीन के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करो. हाँ, अब कन्विक्ट्स, कन्विक्ट्स मतलब याद है आप सबको, वेरी सेकेंड और थर्ड लेक्चर आई हैव गिवन यू, जिसपे कोर्ट में क्राइम का चार्ज लगा है अभी बट प्रूव नहीं हुआ है, उसको क्या बोलना है, याद है आप सबको, अक्यूज्ड, आरोपी, जिसपे आरोप लगा है और जिसपे वो चार्ज प्रूव हो चुका है, उसको क्या बोलना है, क्रिमिनल, दैट इज कन्विक्ट. कन्विक्ट मतलब गुनेगार, जिसपे क्राइम का चार्ज कोर्ट में प्रूव हो चुका है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ कन्विक्ट. बट कन्विक्ट भी एक्सेप्शनली कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. हाँ, बट अभी के लिए आपको जनरली याद रखना है कि alien enemy, foreign sovereign, convicts, etc. These are disqualified from making the contract. Okay, they are disqualified unless they fulfill certain formalities required by law. अभी मैंने आपको बताया, ये लोग भी completely disqualified नहीं है contract करने से. अगर वो कुछ legal formalities complete करता है तो फिर हम लोग इनके साथ भी contract कर सकते हैं. हाँ, तो in a way to make a valid contract, 3 things required under point number 3. That is heading of the point number 3 is a parties must be capable of making the contract. Okay, now capacity of contract जो है वो 3 पॉइंट में डिस्कस की गई है, राइट. नंबर 1, the contracting parties must be major, that is they must be 18 complete. Number 2, the contracting parties must be sound mind. And number 3, they must not have been disqualified from making the contract. So for making a valid contract, one more essential element of a valid contract we discussed, and that one more essential element of valid contract हमने discuss किया, वो क्या था बोलो, we discussed this particular point of a capacity of the parties. Now the fourth thing which is required for creation of a valid contract is a consideration. Consideration मतलब मुबदला, something in return. मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ तो आप मुझे जो रिटर्न में दे रहे हो वो कंसिडरेशन है. I am giving you knowledge, knowledge is your consideration. You are going to pay the fees to our academy, that is our consideration. Okay, so consideration stands for something in a return. यहाँ पे आपको लैटिन फ्रेज नंबर 2 आता है. कंसिडरेशन को एक लैटिन टर्म दी गई है, that is quid pro quo. Quid pro quo. Now what is mean by this particular word quid pro quo? समथिंग इन रिटर्न. मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ तो आप मुझे जो रिटर्न में दे रहे हो वो रिटर्न में दे रहे हो वो क्या बोलो, कंसिडरेशन है. और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ये कि अगर आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो वहां पे कंसिडरेशन का होना मस्ट है. विदाउट कंसिडरेशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं होगा बोलो, वहां पे क्रिएट नहीं होगा. हाँ, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस है जो सेक्शन 25 में आगे हमें एक डिटेल में डिस्कस करनी है. हाँ, देखो, it is referred as a quid pro quo, something in a return. हाँ, a valuable consideration
in the sense of a law may consist either consideration क्या हो सकता है बोलो, कोई प्रॉफिट हो सकता है, कोई राइट हो सकता है, कोई बेनिफिट हो सकता है, हाँ एक पार्टी को, और दूसरे पार्टी पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉरबिडेंस, डिट्रीमेंट, लॉस suffered or undertaken by the another party. I'll just give you one example how consideration is important for making a valid contract, okay, so that you can easily understand what I want to tell you. See, suppose there is a birthday party at my home, and one of my friend is a photographer. मेरे घर में एक बर्थडे पार्टी है और मेरा एक फ्रेंड है जो फोटोग्राफर है, हाँ तो मैंने अपने फोटोग्राफर फ्रेंड को कॉल किया और बोला देखो मुझे पैसे बचाने थे, इनफैक्ट पैसे देने ही नहीं थे, मुझे पॉकेट में काम करवा के लेना था फोटो निकालने का, हाँ तो मैंने अपने फोटोग्राफर फ्रेंड को फोन किया और बोला कि टुडे इज द बर्थडे पार्टी एट माय होम, would you like to take the photos of the birthday party, yeah, will you accept this particular order from me to take a photos of the birthday party? देखो मैं उसको पैसे नहीं देने वाली हूँ, हाँ he said okay I'll come and I'll take the photos, हाँ so I make the offer, he gave an acceptance, but no consideration was decided, okay, I was thinking to take a free work from him, so therefore क्या मिसिंग था, consideration मिसिंग था, okay, so he agreed, I made offer, agreement is created and he didn't give. Question now, can I take an action against my photographer friend? Example number 1, huh? Now we'll go to the example number 2. Same, there is a birthday party at my home, I called my photographer friend, huh, and I told him that today is a birthday party at my home, this is my last year, this birthday party is very important for me. See, if I appoint any photographer from the market, he will take a 10 rupees per copy, but as you are my friend, I'm requesting you to take a 8 rupees per copy and come to birthday party and take all the snaps of the birthday party. Okay, and now in this example number 2, my photographer friend did not attend the birthday party. इस example number 2 में भी मेरे photographer friend ने birthday party को attend नहीं किया. Now question mark here is that one, in which of the example I can take a action on my photographer friend, or can I take a action in a both of the example, or like that I cannot take action in the both of our example. What do you think? The answer of that 2 particular example is that one. क्या answer हमने देखा, देखो that in the first example when I was not giving in written anything to my photographer friend, I cannot take action because there was no consideration. But in example number 2, when I was agreeing to give a lesser amount, भले ही दे कोई problem नहीं है, law कहीं पे नहीं कहता कि आपका consideration complete market value ही चाहिए, आप भले ही कम दे रहे हो but consideration है ना वहाँ पे, so therefore what is important is that consideration का होना, तभी वो agreement क्या हो सकता है बोलो, valid agreement हो सकता है. तो in a second example I can take action on the my friend, and in the first example I cannot take action on my friend. Same सारी situation, but situation का answer enforceability change होती है due to this particular point, consideration. In a first example consideration was not there, and in the second example consideration is there, so therefore that make a change in this particular 2 examples. देखो अब मुझे आपको एक छोटी सी चीज बतानी है, और हमारे इंडिया में तो ऐसे समझो ऐसे बोला नहीं, बट स्पेशली इन इंग्लैंड ये क्लियरली बताया गया है कि कंसिडरेशन जो है ना, कंसिडरेशन हमेशा एक पार्टी को बेनिफिट होगा, दूसरे पार्टी को डिट्रीमेंट या लॉस होगा, या फिर कंसिडरेशन दोनों पार्टी को लॉस हो सकता है, बट कंसिडरेशन कभी दोनों पार्टी को बेनिफिट नहीं हो सकता. नाउ लॉजिकली भले हमें थोड़ा सा ये सेटमेंट अलग लगे, बट दिस इज द वे इन इंग्लैंड द कंसेप्ट ऑफ कंसिडरेशन हैज बीन एक्सप्लेन. तो इसीलिए आपको यहाँ पे भी हेडिंग दिखेगा कि वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ, एक पार्टी को बेनिफिट है, एक पार्टी को कोई राइट मिलेगा, एक पार्टी को कोई इंटरेस्ट मिलेगा, एक पार्टी को कोई प्रॉफिट मिलेगा, बट दूसरे पार्टी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी. जैसे ना एक पार्टी को क्या हो गया, वहां पे देखो पैसे मिल गए, बट दूसरे पार्टी के पॉकेट से पैसे जाएंगे ना, वहां पे उस पे लॉस आ जाएगा, उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि आपको पैसे क्या करने वहां पे देने हैं. इसीलिए इंग्लैंड में ऐसे कंसिडर किया कि कंसिडरेशन में बी अ बेनिफिट टू वन पार्टी, लॉस टू अदर पार्टी, loss to both the parties.
बट दैट कैन नॉट बी अ बेनिफिट टू बोथ द पार्टीज। हाँ, तो ना अब बेनिफिट के लिए अल्टरनेटिव सिनोनिमस वर्ड्स भी दिए और लॉस के लिए अल्टरनेटिव सिनोनिमस वर्ड्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। हाँ, यू कैन सी द स्टेटमेंट, वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ अ लॉ में कंसिस्ट ऑफ आइदर सम राइट हो सकता है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बेनिफिट accruing to one party, या some forbearance, detriment मतलब ही loss or responsibility given, suffered or undertaken by the other party. For example, A agrees to sell book to the B for ₹100. Very simplest example is given. Huh? Now B promises to pay 100 in consideration. A promises to sell the books. B 100 रुपए देगा, उसके बदले में उसको बुक मिलेगा, और A बुक देगा, उसके बदले में उसको 100 रुपए मिलेंगे. A promises to sell the book in consideration for B's promise to pay ₹100. Okay. So fourth essential element for creation of a valid contract, that for creation of a valid contract there must be consideration. विदाउट कंसिडरेशन आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा. देन देखो, वॉट एवर your contract have, if you're talking about object of the contract or you're talking about the consideration of the contract, it must be lawful. देखो, मैंने सिंपल भाषा में आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि I am major, you are major, then we are making a contract for even consideration. प्राइस के अमाउंट भी क्या हो गए हमारे डिसाइड हो गए, बट ना हम लोग जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहे वो है इलीगल प्रोडक्ट. हाँ, तो क्या हमारा एग्रीमेंट वैलिड होगा? क्या नहीं. हमारे एग्रीमेंट का जो पर्पज है वो पर्पज ही क्या हो जाएगा, बोलो वहां पे अनलॉफुल हो जाएगा, तो इसकी वजह से हमारा एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा. राइट. सो द कंसिडरेशन ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, बोलो लॉफुल होना चाहिए. देखो, नॉर्मली मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. 3 चोर है समझो, और 3 चोर एक दूसरे के साथ में पार्टनरशिप बनाते. नॉर्मली तो पार्टनरशिप बनाना एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता. हाँ, बट हमारे एग्जांपल में 3 चोर एक दूसरे के साथ में पार्टनरशिप बनाते कि दिन भर वो चोरी करेंगे, लोगों को ठगेंगे एंड ऑल दैट. हाँ, और जो भी पैसा उनको मिलेगा वो एक दूसरे के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करके लेंगे. हाँ, नाउ बी क्लियर विद द पॉइंट. ओके. तो ये ऐसे उनका 6 महीने चलता रहा. द स्टोरी वेंट ऑन इन अ गुड वे. अच्छा खासा पैसा उन तीनों ने एक दूसरे के साथ में कमाया. हाँ, now one day what happened, one of the thief among them got some money on one day itself, of the amount of rupees. Suppose 3 लाख का उसको क्या हो गया, वहां पे एक लॉटरी टाइप में किसी के पैसे उसने चुराए, तो एक ही दिन में उसको 3 लाख रुपए की लॉटरी टाइप में लग गया. हाँ, उसके अब दोनों दोस्तों को वो चीज पता है, उसके उन दोस्तों को बोले या उसके वो जो भी 2 थीफ है उनको वो पर्टिकुलर चीज पता है. तब ये जो वन पार्टनर है उसका मन आज बदल जाता है. हाँ, उस थीफ का मन बदल जाता है, और 3 लाख एक दिन में हाथ में लगे ना, तो वो चाहता है कि वो 3 लाख लेके वो अकेला क्या करे, वहां पे भागे. वो दोनों को देना नहीं चाहता, वो सडनली पार्टनरशिप तोड़ना चाहता है. हाँ, तो वो 2 चोर इस पे सूट फाइल करना चाहते हैं, क्या पार्टनरशिप रूल तोड़ रहे हो, कर सकते हैं क्या? रीजन विल बी एंड आंसर विल बी. हाँ, द रीजन एंड आंसर आर, वो चोर उस पर सूट फाइल नहीं कर सकते क्योंकि बेसिकली उनके जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है, लोगों को ठगना, चोरी करना. सो देयरफॉर वो 2 चोर इस सिंगल चोर पे सूट फाइल नहीं कर सकते. हाँ, सो योर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, बोलो लॉफुल होना चाहिए. हाँ, और लॉफुल कब होगा, वो उसकी लिस्ट ऑफ द सिचुएशन दी है सेक्शन 23 में कि आपके कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट कब कब अनलॉफुल होगा, उसकी जो लिस्ट दी है वो कौन से सेक्शन में दी गई है, सेक्शन 23 में. हाँ, सी द कंसिडरेशन ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी क्या होना चाहिए, लॉफुल. हाँ, सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल if it is prohibited by law, if you are doing something which is prohibited by law, if you are doing something which is defeating the law, if you are doing something which is fraudulent, if you are doing in a contract something which is causing injury to the property or body of another person, if you are doing something which is immoral, if you are doing in a contract something which is against the public policy, in all this situation the object of the contract will be considered as a unlawful. हाँ, ये जो points है ना, fraudulent, prohibited by law, opposed to public policy, immoral, ये हमें आगे जाके 3-3, 4-4 पेजेस का डिटेल मटेरियल क्या करना है यहाँ पे डिस्कस करना है. अभी के लिए तो आप एक बेसिक मीनिंग समझते हो सबका,
Number one, if you're doing something which is prohibited by law, then where prohibited by law means that three thief are making a contract of making theft a day and sharing, that is prohibited by law. Number two, if you're doing something which is defeating the provision of a law, that means suppose I'm a D pharmacy and I'm making a contract with somebody कि मैं उसको डी फार्मेसी का लाइसेंस दे दूंगी और वो उसके बदले में मुझे पैसे दे देगा, हाँ wrong है, I'm defeating the law. हाँ, then if I'm making a contract with somebody to kill somebody and in return I'm going to give you 5 lakh rupees, again object of contract unlawful है, you get involved the injury to the person or a property. हाँ, then again if I'm giving my house to a particular person for a gambling purpose on a rent, हाँ, again I'm doing something which is opposed to public policy क्योंकि मैं एक तरह से gambling को promote कर रही हूँ. हाँ, या if a particular lady is making a contract relating to some prostitutes etc, मतलब कोई sexual immoral चीजें करने के लिए agreement हो रहा है तो वो immoral है. हाँ, तो therefore in all these examples contract is not going to be created, the agreement will be void. Why? Because the object or consideration of the contract is considered to be unlawful. So section 23 कहता है कि आपको एक valid contract करना होगा तो आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए. एग्जांपल्स देखो, मैंने आपको बताया था कि जब कोई क्रिमिनल केस होता है ना, तो क्रिमिनल केस कोर्ट में कंपलसरी चलता है. आप वो क्रिमिनल केस ऐसे पैसे लेके पीछे नहीं ले सकते हो. हाँ, और अगर लेते हो तो फिर ना वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो अनलॉफुल होगा. हाँ, ए प्रोमिसेस टू ड्रॉप द प्रोसिक्यूशन, याद है आपको बताया था मैंने जब बेसिक लीगल टर्म्स बताए थे. प्रोसिक्यूशन मतलब क्या है, जो क्रिमिनल केस चलने का प्रोसेस है कोर्ट में उसको बोला जाता है प्रोसिक्यूशन. तो ए प्रॉमिस करता है बी को कि आप पे जो मैंने क्रिमिनल केस फाइल किया है वो मैं पीछे ले लेता हूँ अगर आप मुझे मेरी सारी प्रॉपर्टी वापस रिस्टोर करते हो. हाँ, ए प्रोमिसेस टू ड्रॉप द प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द बी फॉर अ रॉबरी. हाँ, एंड बी प्रॉमिस करता है कि मैं आपके पैसे आपको सारे रिस्टोर कर दूंगा. द एग्रीमेंट इज अवॉइड है क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्टिव केस है, बोले इसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है वहां पे. हाँ, अगेन देखो क्या A agrees to sell his house to the B against 100 kg of the cocaine. हाँ, such agreement is illegal as the consideration is unlawful. A क्या कर रहा है, B को अपना घर बेचने के लिए एग्री कर रहा है और उसके बदले में क्या ले रहा है, बोलो 100 kg of the cocaine. मतलब एक पार्टी के साइड से जो कंसिडरेशन आ रहा है वो कंसिडरेशन कैसे, बोलो इलीगल है, इसलिए यहाँ पे एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा. हाँ, so the one more point we have finished out here for creating a valid contract, and that point is the object or consideration of the contract कैसा होना चाहिए, बोलो lawful होना चाहिए. And now the last essential element of valid contract is your agreement should not be the one which is expressly declared to be void. देखो अभी आपको void का मीनिंग पता नहीं है. हाँ, exactly कल हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुरू करेंगे तो फिर आपको void का मीनिंग वहां पे पता चल जाएगा. हाँ, नाउ अभी के लिए मैं आपको एक जनरल void का मीनिंग बताती हूँ. void मतलब क्या आ जाएगा, देखो void stands for which is not enforceable in the court of law, जिसको आप कोर्ट में एनफोर्स ही नहीं कर सकते हो, भले दोनों पार्टी चाहे तो भी जिसको कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जा सकता उसे बोला जाता है void. अब हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना अराउंड 13 to 14 ऐसे एग्रीमेंट्स दिए हैं जिनको उन्होंने लॉ ने खुद ही डिक्लेयर किया है कि void है. वहां पे आपको सोचने की जरूरत नहीं कि वो वैलिड है या इलीगल है या वॉइडेबल है या void है, वो कंप्लीटली डिक्लेयर्ड ही है कि void है. तो आपका जो एग्रीमेंट है वो उस लिस्ट में से नहीं चाहिए. ओके, सो सिंपल. द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू must not be the one which declared as a illegal or a void. Illegal agreement is expressly or impliedly prohibited by law. हाँ, and void agreement का कोई legal effect ही नहीं होता है. तो आपका एग्रीमेंट ऐसा नहीं चाहिए कि जिसको लॉ ने खुद इलीगल या void डिक्लेयर किया है. हाँ, जैसे कि देखो एग्जांपल दिया है वहां पे कि मैंने आपको धमकी दी कि मैं आपका मर्डर कर दूंगी, या मैंने किसी को धमकी दी कि आपके बारे में मैं बदनामी कर दूंगी. हाँ, एंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए फोर्स किया तो वो जो है वो क्या हो जाएगा, देखो वहां पे इलीगल हो जाएगा. हाँ, थ्रेट टू कमिट अ मर्डर और मेकिंग और पब्लिशिंग डिफेमेटरी मतलब बदनामी. हाँ, स्टेटमेंट और एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ऑल आर कंसिडर्ड एज
इलीगल, या फिर ना आप किसी को कहते हो कि ये बिजनेस आप जिंदगी भर नहीं कर सकते हो, ये एग्रीमेंट वॉइड है, क्योंकि उसको क्या बिजनेस करना है उसका अपना ओन फ्रीडम है। हाँ, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, आप किसी से लिख के लेते हो कि आप जिंदगी भर शादी नहीं करोगे, ये उसकी अपनी मर्जी कि उसको शादी करनी है या नहीं करनी, ये उसका पर्सनल मैटर है, ये एग्रीमेंट वॉइड है। हाँ, आप किसी से लिख के लेते हो कि आप कभी भी कोई लीगल एक्शन नहीं लोगे, अरे लॉ ने आपको परमिशन दिया है लीगल एक्शन लेने का, अगर मेरा राइट वायलेट होता है तो लीगल एक्शन लेने का अधिकार मुझे लॉ ने दिया है, तो ऐसे कोई उसको निकाल के ले नहीं सकता। सो देर आर सर्टन लिस्ट ऑफ void एग्रीमेंट गिवन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, योर एग्रीमेंट शुड नॉट बी द वन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लिस्ट, आपका एग्रीमेंट उस लिस्ट में से होना नहीं चाहिए। ओके, सो बाय द वे यहाँ पे हमने इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाला जो हिस्सा है वो क्या किया, कंप्लीट किया। There are certain essential elements which are given in the Indian Contract Act Section 10, and there are certain essential elements which are not given in Indian Contract Act Section 10. Both the essential element from Indian Contract Act and beyond Indian Contract Act Section 10 के अंदर के essential element भी डिस्कस किए, और जो Section 10 में नहीं है लेकिन essential element है वो भी हमने डिस्कस किए, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर क्रिएटिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या चाहिए बोलो, वहां पे two parties must be there, okay, one making offer, another making an acceptance. We discussed that case of Raman Lal. Then next, intention to create legal relationship. Parties का intention legal relationship create करना होना चाहिए. There may be a legal agreements and there may be a social agreement. Law enforced the legal agreement, but law did not enforce the social agreement because there is a missing point in a social agreement, that is intention to create legal relationship. We discuss a very famous case law, Balfour versus Balfour. Then for creation of a valid contract, the terms of your contract must be certain. If I have 3 car, I'm not specifying which one car I'm selling you, no valid contract is going to be created thereon. Then for creation of a valid contract, your contract must be capable of being performed. Like suppose a boyfriend promising a girlfriend that he will bring a moon down for her, and on that she's promising to marry with him. The agreement is a void agreement, not valid agreement. क्यों valid agreement नहीं है? क्योंकि ये चीज perform करने के लिए impossible है. Then we discuss कि these all 5 points where from Indian Contract Act के section 10 में नहीं है, but still कहीं ना कहीं Indian Contract Act में है. Then from section 10 of Indian Contract Act, certain essential elements we discuss. There must be one party making offer, another party giving an acceptance. Offer plus acceptance is going to create agreement, that is going to create a contract. Okay, then second thing, for creation of valid contract, parties must give the pre-consent. Consent defined in section 13, pre-consent defined in section किसमें दिया गया 14. parties अपनी इच्छा से बोले तो ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा. जैसे सेक्शन 14 में दिया है कि देयर शुड नॉट बी कोर्शन, फिजिकल फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मॉरल फोर्स, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, देन ओनली अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्रिएटेड. देन फॉर क्रिएशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या रिक्वायर्ड है बोलो, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए. देन फॉर क्रिएशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज का जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए. ड्रग्स वगैरह सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है. और अगर लॉ कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज प्रिस्क्राइब करता है तो वो लीगल फॉर्मेलिटीज कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए वहां पे फुलफिल करना जरूरी है. एंड लास्टली, योर एग्रीमेंट शुड नॉट बी द वन which is expressly declared to be the void. Okay, so all these essential elements of valid contract we have discussed. Okay, if you have understood this, you are going to have the offer and acceptance, then intention to create legal relationship, lawful consideration, capacity of party, legal formalities. Agreement should not be expressly declared to be void. It should have certainty of meaning. Object of agreement must be lawful. Parties must have the free consent. If all essential elements are presenting, your agreement is going to be converted into the contract.